بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باقی جیسا کہ میں نے بتایا تھا طبیعت ابھی نہیں سیٹ ہو رہی، کھانسی کا اتنی زیادہ شدید کھانسی، اتنی شدید کھانسی ہے، بولتی ہوں کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی خیر ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں، دیکھتی ہوں کیسی ہوتی ہے، کس حساب سے ہوتی ہے۔ باقی ہمارے ریلیٹیوز میں ایک ڈیتھ ہو گئی تھی، ادھر بھی تھوڑی مصروفیت رہی، تو کمنٹ سیشن میں جیسے فری ہوں گی نا تب ویسے ریڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی تو میں ناول ہی جس طرح سے دے رہی ہوں نا، مجھے پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں، ہم اپنے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سنان جلدی سے نیچے پہنچو، پھپھو اور یا شار بھائی گاؤں سے آئے ہیں، ہانیہ صدا لگاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ پھپھو آئی ہیں، تم بھاگتی بھی نیچے نہیں پہنچی؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں بھی دوڑتی بھی نیچے پہنچ جاؤں؟ اب میں کوئی بچی نہیں ہوں، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، منہاج متانت سے بولی۔ ماں صدقے چلی جاؤ، 3rd ایئر دی اسٹوڈنٹ تھے۔ اچھا تم جلدی سے آؤ، میں جا رہی ہوں، اسے کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تم کیا جانو ہانیہ کہ مجھے کیا ہوا؟ یہ تو ابھی مجھے خود بھی نہیں معلوم، وہ خود سے بولی، پھر تھوڑی دیر بعد ہی نیچے چلی آئی جہاں سبھی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، ایک وقت پھپھو اور یشار سکندر سے مخاطب ہوئی۔ یشار نے جواب میں ہولے سے سر ہلا دی، جبکہ پھپھو نے اسے پیار کرتے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ سب کے لیے اس کا رویہ جیسا بھی تھا، لیکن یشار سکندر ایک ایسا شخص تھا جس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اسے سونان کے انداز و اطوار چونکا رہے تھے۔ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی جس نے سونان مرتضیٰ کو بدل ڈالا تھا۔ وہ اس وقت واسطے اور مرتضیٰ ماموں سے بات چیت میں مصروف تھا، لیکن اس کا دھیان سونان کی طرف ہی تھا، جو ہولے ہولے سب کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ پھپھو آپ رکیں گی نا؟ سونان نے فرحانہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، کل واپس جانا ہے، امان اکیلا ہوگا، اس لیے کل مجھے واپس جانا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تو اس نے بھی ضد نہیں کی۔ اگلے دن پھپھو نے چاہتے ہوئے اسے چھٹیوں میں گاؤں آنے کا کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یشار سکندر انہیں چھوڑنے چاہ رہا تھا، اس کی پوسٹنگ کیونکہ اسی شہر میں ہوئی تھی، اس لیے وہ انہیں لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اچھا جی۔ یشار بیٹا میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ فرحانہ بیگم نے پھر سے وہی موضوع چھیڑ دیا جس سے وہ دور بھاگتا تھا۔ اماں جان ابھی مجھے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی سے میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یہ تو گل صحیح ہے، بیاہ کرا لا یا ملک سے کچھ کر لا۔ ہائے بچے باہر لگے میں کتنا شور ہوا ہوا، اب مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو میں شور آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم کچھ نہ کرو، میں صرف تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں۔ گھر میں بہو آ جائے تو مجھے بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ امان اسکول چلا جاتے تم اپنی ڈیوٹی پوری کرنے چلے جاتے ہو اور پیچھے میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ جب بس اب اگلی دفعہ چھٹی پر آؤ تو مجھے کوئی اپنی پسند تو بتاؤ، کوئی پسند ہے تو بتاؤ، نہیں تو پھر میں اپنی پسند کی بہو لے آؤں گی۔ وہ اسے سوچنے کا موقع دیتے بولی تو وہ بھی چپ کر گیا۔ تو اماں جی بہو لے آنی اپنے واسطے نہیں آنی کہ پتر واسطے لے آنی ہے؟ وہ شام کو خان ولا پہنچا تھا۔ مصطفیٰ ماموں سے اس کی ملاقات کافی عرصے بعد ہوئی، کیونکہ وہ صبح کو جاتا تو پھر شام کو ہی واپسی ہوتی۔ اکثر اوقات تو رات ہو جاتی، اس لیے اس کی ملاقات مصطفیٰ ماموں سے نہیں ہو پاتی۔ ہاں بھی برخوردار، آج کل کہاں ہوتے ہو؟ نظر ہی نہیں آئے کافی عرصے سے، مصطفیٰ ماموں نے پوچھا۔ پچھلے دنوں ایک اہم کیس میں پھنسا ہوا تھا، کافی مصروفیت تھی، وہ انہیں تفصیلات بتانے لگا۔ اتنے میں سونان اور ہانیہ اکیڈمی سے واپس آ گئی۔ اس کے قدم یشار کو سامنے بیٹھے دیکھ کر رک گئے، لیکن پھر ہانیہ کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی۔ دونوں نے بیک وقت سلام کیا۔ کیسی جا رہی ہے تم لوگ کی پڑھائی؟ یشار نے دونوں سے پوچھا۔ بس یشار بھائی کچھ نہ پوچھے، ہمارا تو کوئی حال نہیں، ہانیہ سونان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی، تو مصطفیٰ ماموں یشار سکندر اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ مصطفیٰ ماموں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف فرحانہ بیگم تھی۔ ہاں فرحانہ پہنچ گیا، ابھی ابھی پہنچا۔ مصطفیٰ ماموں نے یشار سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ فرحانہ بیگم نے نہ جانے کیا کہا، پھر فون رکھ دیا۔ ہانیہ اور سونان اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں بھائی یہ شادی وغیرہ کا کیا چکر ہے؟ مصطفیٰ ماموں ان دونوں کے جاتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یشار سکندر ایک پل میں اماں جان کے فون کرنے کا مقصد سمجھ گیا۔ وہ مصطفیٰ ماموں سے اس حد تک ڈائریکٹ بات کر کے توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی بات سن کر سٹپٹا گیا۔ وہیں سونان کی صحت بھی تیز ہوئی، لیکن یشار سکندر نے جواب میں کیا کہا تھا وہ سن نہیں سکی۔ ہانیہ اپنے پوشن کی طرف بڑھ گئی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اب کیا ہوگا وہ سوچنے لگے۔ اتنے میں گڑیا اس کے کمرے میں یشار سکندر کا پیغام لیے چلیے، آپ کو یشار بھائی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ کہہ کر چلی گئی، وہ نئے سرے سے سوچ میں مبتلا ہوگی کہ نہ جانے کیوں بلایا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹھو۔ وہ اسی چیئر پر جھومتا شاید اس کا منتظر تھا، تبھی رک سا گیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ یشار سکندر کی آواز کمرے میں گونجی۔ سونان نے ایک نظر اس کو دیکھا جو اب ایزی چیئر سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے آ بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ سونان تم چاہے کچھ بھی کہو، کچھ تو ہوا ہے، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے شاباش جلدی سے کہو۔ وہ یشار سکندر نے پھر کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی کہ کہیں وہ اس راز کو نہ پالے جو وہ خود سے بھی چھپائے چھپائے پھیری تھی۔ وہ پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوا۔ سونان یہ تمہارا کترانا، یہ گھبراہٹ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ سونان نے اس کی آنکھوں میں سوچوں کی تحریر دیکھی تو رک گئی۔ آپ کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ آپ میری رگ رگ سے واقف ہیں تو پھر اب کیوں انجان بن رہے؟ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور پیچھے یشار سکندر کو سوچوں کے ایک نئے جہان میں چھوڑ دی۔ کیا سونان مجھ سے؟
वो कहते हुए खुद ही नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं तेरे अब्बे नाल। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल भी इसको इस नज़र से नहीं देखता। बेवकूफ़ लड़की, ना जाने क्या हो गया इसको, वो बड़बड़ाया। अच्छा, नहीं देखदा तू इस नज़र नाल, फिर की करिए? मुर्तज़ा खान बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। एक बेटा वासिर और बेटी सुनान थी। सुनान की पैदाइश पर बेगम का इंतकाल हो गया। सुनान की तरबियत देखभाल सबसे ज़्यादा फरहाना बेगम ने की, जो मुस्तफ़ा खान से बड़ी थी। फरहाना की भी 2 औलादें याशार सिकंदर और मान सिकंदर थे, जबकि सबसे छोटे मामू की 2 बेटियां थी, हानिया और गुड़िया। वासिर मुर्तज़ा साहब के बिजनेसमैन के साथ था। याशार सिकंदर पुलिस के महकमे में था, जबकि उमान मैट्रिक का स्टूडेंट था। हानिया और सुनान 3rd ईयर में थी, जबकि गुड़िया 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। मुस्तफ़ा खान की बेगम नशीन एक मुकम्मल घरेलू खातून थी। ये शार सिकंदर को तकरीबन 1 हफ्ते बाद फुर्सत मिली कि वो सुनान से दोबारा बात कर सके, तो इसके कमरे की तरफ चला है। क्या कहा था तुमने उस दिन? वो बिल्कुल इसके सामने खड़े पूछ रहा था। कोई जवाब नहीं पाकर वो फिर इससे मुखातिब हुआ, जो सर झुकाए बैठी थी। सुनान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या बकवास की थी तुमने उस दिन? वो थाड़ा। बकवास नहीं की थी, सच कहा था मैं आपसे। बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि शार सिकंदर का हाथ उठ गया। शट अप, जस्ट शट अप, वो लड़खड़ाकर बेड पर गिरी। सुनान, बंद करो बकवास अपनी। इसको बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा किया। कान खोलकर मेरी बात सुनो। इस बारे में तुमने अगर कोई मजीद फजूल बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो तुम्हें बच्ची समझता था, इसीलिए तुम्हारे नाज नखरे उठाता था। मुझे नहीं पता था कि तुम इसका ये मतलब निकालोगी। वो दरश्की से बोला। आप कभी नहीं समझ सकेंगे, मैं सचमुच आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसे यकीन दिलाते हुए बोली। किसने भरी है तुम्हारे जहन में खुराफात? बोलो। मुझसे पूछा था। ये खुराफात नहीं है, वो फिर जोर से बोली। सुनान, इन हाथों में खिलाया तुम्हें अपनी और मेरी उम्र में फर्क जानती हो? पूरे 15 साल बड़ा हूं तुमसे। मैंने तुमको इस नजर से कभी नहीं देखा, ना देख सकता हूँ। इस घर में मेरी अगर थोड़ी सी भी इज्जत है तो वो रहने दो। मेरे लिए बच्ची हो तुम, गुड़िया बिल्कुल अमान जैसी। वो अफसोस से इसकी तरफ देखते हुए बोला। सुनान ने कुछ कहने को लब खोले थे कि इसे फिर से वार्न करते हुए बोला। अब मजीद कोई बकवास नहीं सुनना चाहता मैं। भूल जाओ अब कि तुम किसी यशार सिकंदर को जानती थी। वो कहकर बाहर चला गया और सुनान वहीं सोफे पर ढह सी गई। एक तो यह बड़ी बड़ी गल है ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ समझते सी है की हो गया। अरे ये क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? नशीन मामी ने इससे पूछा। मामी मेरी पोस्टिंग लाहौर होगी, मुझे आज ही वहाँ रिपोर्ट करनी है। ठीक है, 1 हफ्ते बाद वो यहाँ से चला गया। सुनान कॉलेज से वापस आई तो इसे पता चला। वो रोने के सिवा और क्या कर सकती थी। यशार, आपने क्यों ऐसा किया? वो फूट फूट कर रोती। इसने अपना कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया था, राब्ते का कोई जरिया नहीं रहा। सुनान, तुम्हारा फोन है। हानिया इसके कमरे में दाखिल होते हुए बोली। इसने फोन थाम लिया। दूसरी तरफ फुप्पो थी। बेटा कब आ रही हो तुम? अब तो तुम्हारे पेपर्स भी खत्म हो गए, फरहाना बेगम ने पूछा। फुप्पो मैं आने की कोशिश करूंगी, वो इन्हें टालते हुए बोली। बेटा मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, कल अमान को लेने ड्राइवर को भेज रही हूँ। इसकी भी छुट्टियां हो गई, तुम भी इसके साथ ही चली आना। वो बहुत मान से बोली तो इसे भी हामी भरना पड़ी। हानिया फिलहाल इसके साथ नहीं जा सकती थी। इसने पेपर्स के फौरन बाद कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। अगले दिन वो गाँव चली आई। यहाँ आकर इसे हमेशा ही अच्छा लगता था। अमान अगरचे मैट्रिक का स्टूडेंट था, मगर दोनों में खूब दोस्ती थी। शाम को फुप्पो के साथ किचन में मसरूफ थी कि इशार सिकंदर की गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजा। फुप्पो भी आवाज सुनकर मतवज्जा हुई और बेख्तियार बाहर आ गई। सामने वो नजर आए। फुप्पो ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। वो भी किचन से बाहर चली है। इसे देखते ही इशार सिकंदर के माथे पर कई लकीरें उभरी, लेकिन फिर इसे नजरअंदाज करता अंदर की तरफ बढ़ गया। सुनान को इसे इतने अरसे बाद देखने की जहाँ बेहद खुशी थी, वहीं वो इसकी नाराजगी से खाइफ भी थी। वो 15 दिन की छुट्टी पर था। कुछ दिन तक तो इसके जारहाना अंदाज से खाइफ रही, लेकिन फिर इसने भी इशार सिकंदर के इस अंदाज से समझौता कर लिया और खुद को अपनी आदतों से बाज नहीं रख सकी। इशार सिकंदर के घोड़ों के अस्तबल से घोड़ा लेकर वो अमान के साथ बाहर चली है। कुछ देर तो वो खुद बहादुरी से राइडिंग करती रही, फिर इसने अमान को घोड़े पर बैठने को कर खुद लगाम थामे साथ साथ चलने लगी। न जाने घोड़ा क्यों बदकने लगा, अमान सीधा नीचे गिरा और इसके बाद सुनान के हाथों से लगाम छूटी, वो भी घसीटती भी नीचे गिरी। दोनों को बाजू और घुटनों पर खराशी आई। अमान, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? न जाने से किसने इतला दी थी, जब यहाँ बैठा फिक्रमंदी से पूछ रहा था। सुनान ने अपनी चोट को सहलाते हुए नम आंखों से इसे देखा, जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमान की तरफ मतवजा था। भाई बस बचत होगी, वरना दोनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने बैक वक्त घोड़े और सुनान की तरफ इशारा किया। तुम्हें मना किया था ना कि कोई बच्चों का खेल नहीं, मगर तुम लोग बड़ों की बात को कभी समझना ही नहीं चाहते। अब भुगतो। वो अमान का हाथ पकड़ते हुए बोला, जिसके सहारा लेकर चल रहा था। यशार सिकंदर ने दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम थाम ली, जो इसे देखकर फौरन पास चला आया था। सोनान ने अपने आंसू को बाहर आने से बमुश्किल रोकर खुद ही उठकर खड़ी हुई। सोनान आप ही, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अमान ने पीछे मुड़कर इससे पूछा तो वो नफी में सर हिला गई। यशार सिकंदर ने एक नजर में इसके बाजू पर लगी खराशों को देखा, मगर दूसरे लम्हे सर को झटक कर अमान की तरफ मतवज्जा हो गया। जैसे वो लोग घर पहुंचे तो यशार सिकंदर अमान को अम्मा जान के पास ले। अम्मा जान, देखिए आप अपने इस लाडले को, सुबह पे मना कर रहा था कि मत कहीं जाना, लेकिन ये बात नहीं है। शुक्र करे वो हड्डी पसली नहीं टूटी। वो अपने हाथों से इसके बाजू पर लगी खराशों पर दवा लगाने लगा। सुनान तो घर में दाखिल होते अपने कमरे में चली है। एक पल को यशार सिकंदर को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ, लेकिन अगले लम्हे वो कुछ दिन पहले की बात याद करके लब फेंच कर रह गया और वॉशरूम हाथ धोने के लिए बढ़ गया।
ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਹਿ ਦੇਣੇ से ना मुंह बोले जो रिश्ते होते हैं ना कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरा इदा ते उदा, मुंह बोले रिश्ते कह देने से नहीं हो जाते। ठीक है, कोई किसी को भाई कह देने से कोई आपका भाई नहीं बन जाता, और किसी को बहन कह देने से वो आपकी बहन नहीं बन जाती कि आप एडी तुसी फ्रैंकनेस रखो ते सारा कुछ करो। इस्लाम में जो हदूद है वो हदूद जायज़ है, इंसान को फॉलो करना चाहिए। इन हर बंदे को इस मामले में कंजर्वेटिव होना चाहिए, बेशक वो मर्द है या बेशक औरत है। मेरी तो ये सोच है। बाकी फिर जेड़े नहीं होंदे फिर इदा दे रिजल्ट सामने आंदे ने। अगली सुबह वो लोग अभी नाश्ते कर रहे थे कि यशार सिकंदर नहायत तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला। अम्मा जान ने हैरत से देखा। यशार बेटा, खैरियत तो है ना? फरहाना बेगम ने पूछा। यशार इन्हीं की तरफ चला। सुनान ने अपनी तमाम तर त्वचा चाय की तरफ मरकूज कर दी। डीआईजी साहब ने फौरन बुलाया तो मैं वापस जा रहा हूँ। सुनान को इसकी आवाज सुनाई दी। अच्छा बेटा, तुम तैयारी कर लो, मैं नाश्ता तुम्हारे कमरे में भिजवाती हूँ। अम्मा जान ने नरमी से कहा। अम्मा जान, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, नाश्ते को रहने दे, आप बस चाय भिजवा दे। वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। अम्मा जान ने चाय तैयार करके सुगरा को देखा, जिस वक्त चारा उठाए भैंसों के बाड़े की तरफ जा रही थी। इन्होंने इसे इस वक्त बुलाना मुनासिब नहीं समझा। यशार सिकंदर की सफाई पसंद तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। इन्होंने सोनान को चाय देकर भेजा, जो न चाहते हुए भी इसके कमरे की तरफ चल दी। दरवाजा नॉक किया तो अंदर से इसकी मसरूफ सी आवाज सुनाई दी। वो इजाजत मिलने पर धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। वो इस वक्त अपने कपड़े बैग में रख रहा था। इसे देखकर एक पल को इसके हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए, मगर दूसरे लम्हे वो इसके सर पर जा पहुंचा, जो चाय का कप हाथ में थामे खड़ी थी। मसला है क्या तुम्हारे साथ? क्यों मेरे इतनी प्रॉब्लम्स पैदा कर रही हो? वो गुस्से से ठाड़ा। रखो ये इधर टेबल पर और जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे कमरे में कदम मत रखना। वो गुस्से से बोला और चाय रखकर फौरन वो कमरे से बाहर निकल गई। न जाने कौन इसके दिमाग में ऐसी खुराफात भरता है। वो चाय का सिप लेते पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाया। आधे घंटे के बाद वो सबसे मिलकर चला गया। यशार सिकंदर की गाड़ी जब तक निगाहों से ओझल नहीं हुई, वो छत पर खड़ी रही। आप एक दिन खुद कहेंगे कि आपने बहुत गलत किया, वो हौले से बोली और सीढ़ियां उतर कर नीचे चली आई। वासे के साथ वो घर वापस आ गई। फोर्थ ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। इन्हीं दिनों में फुप्पो के फोन ने घर भर में खुशी की लहर दौड़ा दी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बात से इसके दिल में क्या भौचाल आ गया। इसने शादी के लिए रजामंदी दे दी थी और साथ ही अपनी पसंद से भी आगाह कर दिया। रबिया नवाज इसके चचा की बेटी थी। इसकी हम उम्र, हम मजाज, किसी कॉलेज में पढ़ाती थी। सोनान को जब ये पता चला तो इसने ये शार सिकंदर की तरफ फोन मिला दिया। फोन उसी ने रिसीव किया। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? वो बिलक बिलक कर रो दी। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों अपने साथ साथ मुझे भी बदनाम करना चाहती हो? जब जानते हो कि ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर क्यों? क्यों मुझे सबकी नजरों में और खास तौर पर मुर्तजा मामू की नजरों से गिराना चाहती हो? वो ठहरे हुए लहजे में बोला। क्यों मुमकिन नहीं है सब? आप एक दफा हामी तो भरें, कुछ मुश्किल नहीं है। सब इतना पसंद करते हैं आपको, आपकी इज्जत करते हैं, तो वो क्यों इनकार करेंगे? वो रोते हुए बोली। सोनान, अगर सब मान भी जाए तो फिर भी मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो इसे समझाते हुए बोला। मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। मुझे पता है आप सिर्फ मेरी वजह से इतनी जल्दी शादी के लिए मान गया। वो एक बार फिर बहुत आस से बोली। सोनान, मैंने कहा ना कि तुम अभी बच्ची हो, मुझे कोई मिच्योर लड़की चाहिए और तुम मिच्योर नहीं हो। और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से शादी करूं? शादी तो मुझे करनी थी, जल्दी या बदेर। और मैं फोन रखने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब आखिरी बार कह रहा हूं, अब मुझसे दोबारा इस मौजूद पर कोई बात मत करना। मैं अब तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा। वो गुस्से से इसने फोन ही पटक दिया। ठीक है, अब मैं भी देखूंगी कि मोहब्बत की बाजी कौन जीतता है, मैं या आप। वो अपनी हथेली से आंसू साफ करते हुए खुद से बोली। फरहाना पप्पो अम्मा जान तो लगता था कि सारी तैयारियां पहले से मुकम्मल करके बैठी थी, इसलिए फौरन एक माह के बाद शादी की तारीख रख दी। हानि और गुड़िया भरपूर तरीके से तैयारियों में मसरूफ थी, और एक वो थी जो पूरी दुनिया से शायद बेखबर अपने कमरे में हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ होती। सुनान, क्या बोर कर रही हो तुम भी? कोई शादी की तैयारी नहीं करनी क्या? हानिया इसके पास बैठते हुए बोली। तुम बेफिक्र हो, मैं टाइम पर सब तैयारी कर लूंगी, अभी तो काफी दिन बाकी है। वो कहकर फिर से किताब पढ़ने में मसरूफ हो गई। हानिया इसकी तरफ पुरसोच नजरों से देखने लगी। सुनान, क्या बात है, तुम कुछ बदल सी गई हो? वो किताब इसके हाथ से लेते हुए बोली। हानिया, किताब वापस करो, मेरा कल टेस्ट है, फजूल में मुझे तंग मत करो। वो किताब लेते हुए बोली, फिर खुद ही से अपने लहजे का एहसास हो गया। सॉरी हानिया, कल मेरा टेस्ट है, इसी वजह से मैं परेशान थी, मेरी तैयारी भी नहीं है। तुम बताओ क्या कह रही थी? वो नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली। कुछ नहीं, मैं तो ये शार भाई की शादी के लिए एक्साइटेड हो रही थी, तो इसलिए तुम्हारे पास चलिए, तुम पढ़ो, मैं फिर आ जाऊंगी। वो कहते बैठी। तुम नाराज तो नहीं हो ना? सोनान ने इसका हाथ पकड़ते हुए पूछा तो हानिया हंस दी। मैं क्यों नाराज होने लगी? तुम पढ़ो, मैं शाम को फिर आ जाऊंगी। हानिया चली गई तो सुनान ने भी गहरा सांस लेकर फिर से किताब की जानिब मतवज्जा हो गई। उनके सिर ते सान करंदा तेनू की फायदा बीबी। ये शार सिकंदर की मेहंदी के रोज वो सब शहर से गांव की जानिब रवाना हुए। सोनान ने एंड टाइम पर जाने से इनकार कर दिया और कॉलेज में दिसंबर टेस्ट का बहाना बना दिया। मुर्तजा साहब से इसे काफी डांट टपट भी पड़ी। बेटा, अगर तुम पहले बता देती तो शादी की तारीख आगे रख देते। मुर्तजा साहब से डांटने के बाद इससे कहा, फिर वो लोग इसे छोड़कर रवाना हो गए। आने के पेपर जनवरी में थे, इसलिए वो काफी खुश थी। गांव में इन सबका पप्पो ने बहुत खुशी से इस्तकबाल किया। वहीं वो सुनान के ना आने पर हैरतज़दा भी हुई। मुर्तजा भाई, ये सुनान कहाँ है, क्यों नहीं आई? इन्होंने इस्तफसार किया। फरहाना, इस पागल ने एंड टाइम पर बताया कि इसके दिसंबर टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं।
मुर्तज़ा साहब को अभी भी इसकी बचकाना हरकत पर गुस्सा था। इसने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कोई और तरीक रख देती। फरहाना बेगम ने कहा तो मुर्तज़ा साहब ने भी इनकी तायद की, जबकि इशार सिकंदर जानता था वो क्यों नहीं आई, मगर खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं था। तू ते ब्याह करा ला ना, तेनू की लगे आई नहीं आई है। शाम को मेहंदी थी। इशार सिकंदर को दुपट्टे की छांव में कुर्सी तक लाया गया। ब्लैक कुर्ता शलवार पहने वो आज बाकी दिनों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। सबने मेहंदी की रस्म अदा की। इशार सिकंदर को एक लम्हे के लिए सुनान की गैर मौजूदगी का एहसास शिद्दत से हुआ। इसका जी चाहा कि इसी वक्त जाए और इसको अपनी खुशियों में शामिल करे, मगर अगले लम्हे वो खुद पर काबू पा गया। अगले दिन चूंकि शादी थी, बारात गाँव ही जानी थी, लेकिन फिर भी वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा गया। बारात टाइम पर पहुंची। रबिया नवाज रबिया सिकंदर बनकर फूफो के घर आ गए। वलीमे के बाद वो तमाम भी शहर लौट आए और साथ इन लोगों को शहर आने की दावत भी दे डाली। घर पहुंचे तो सुनान को बुखार में तड़पते देखा। 3-4 दिन में बिल्कुल कमजोर हो गई थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब, कोई फिक्रमंदी की तो बात नहीं है ना? वासे ने सुनान के मुतालिक पूछा। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सा बुखार है। आप ये दवाएं इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। डॉक्टर ने मुर्तजा साहब और वासे से हाथ मिलाते हुए कहा। वो दोनों बाप बेटा फिर सोनान के कमरे की तरफ बढ़ गए। जान और शीन मामी से सूप पिला रही थी। 2 दिन में इसकी हालत काफी बेहतर होगी कि इन्हीं दिनों में रबिया और यशार सिकंदर इनसे मिलने चले आए। सबने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। वहीं ने सुनान की तबीयत की खराबी का पता चला। यशार सिकंदर की हसियात एकदम तेज हुई। रबिया सुनान से मिलने इसके कमरे में चली है। हानिया ने इसका तारुफ करवाया। रबिया बहुत अच्छे तरीके से मिली। वो सुनान से काफी देर तक इसके बारे में बातें करती रही, जबकि सुनान सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती रही। यशार सिकंदर इसके कमरे में भी नहीं आया था। इन दोनों के जाने के बाद फूट फूट कर रो दी। चंगा ये ना आवे, खसमान खावे, ब्याह कर ले तो बेटर रहे होते। रबिया, जल्दी से मेरा कोई सूट प्रेस कर दो, मुझे शाम होने से पहले लाहौर पहुंचना है। यशार सिकंदर ने रबिया से कहा, जिस वक्त कल का लेक्चर तैयार करी थी। यशार, आप अम्मा जान से कह दे मैं फिलहाल मसरूफ हूँ। वो कहकर फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। यशार सिकंदर को इसकी बात पर गुस्सा आ गया, मगर फौरन ही बर्दाश्त कर गया और अपने कपड़े लेकर अम्मा जान के कमरे की तरफ चल दिया। इन्हें कपड़े प्रेस करने के लिए दिए और खुद वॉशरूम चला गया। पापी साथ इसी वक्त रबिया अपने भाई दाऊद से बातों में मसरूफ थी। दाऊद रबिया का छोटा भाई था। मैट्रिक में नाकामी के बाद इसने तालीम को खैराबाद कह दिया और आजकल फारिग ही था। सबके बात समझाने पर भी वो तालीम की तरफ दोबारा रागिब नहीं हो पाया। या इशार सिकंदर ने जब रबिया और दाऊद को बातें करते देखा तो मिलने के बाद अम्मा जान की तरफ चला, जो कि चाय बनाने में मसरूफ थी। अम्मा जान, ये सब आप क्यों कर रही हैं? रबिया से कहें वो खुद क्या करे। वो अंदर के गुस्से को दबाते हुए बोला, बेटा क्यों गुस्सा करते हो? आज नहीं तो कल तो इसे करना ना। ये सब कुछ तुम भी चलकर बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अम्मा जान मतानत से बोली। अम्मा जान, पहले इन्हां दी लगामां खिंचेंगी तो सैट रहना उन्हें, नहीं तो फिर सिरे चढ़ावेंगी तो फिर सिरे ही चढ़ी रहेगी, फिर तेरे को बात चलाई नहीं जानी। अम्मा जान, मैं इसे यहाँ बिठाने बैठा रहने के लिए नहीं लाया। आप इसे कहती क्यों नहीं है? इसका फर्ज बनता है आपकी हेल्प करवाए, खिदमत करे। वो किचन में बैठ गया। बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आएगी, बच्ची नहीं है वो। अम्मा जान उठते हुए बोली तो वो खुद से भी नजर चुराकर दिल ही दिल में गोया हुआ। हाँ, बच्ची नहीं है, इसीलिए यहाँ लाया था। और वो सुनान, इसे न जाने क्यों सुनान याद आ गई। उन तो कदम कदम तो याद आएगी बेगैरत। अगर वो यहाँ होती तो अम्मा जान कितनी खुश होती। इसे अम्मा जान की ख्वाहिश भी मालूम हो गई थी, मगर वो खामोश ही रहा। वो अपनी सोचों में गुम था कि रबिया किचन में दाखिल हुई। वो चौंक गया। रबिया, क्या ये अच्छा लगता है कि तुम वहां बैठी गप्पे लगा रही हो और अम्मा जान यहाँ तुम्हारे काम कर रही हैं? वो इसे समझाते हुए बोला तो रबिया ने बहुत हैरत से देखा। मेरा भाई आधे घंटे के लिए और मैं वो टाइम चाय बनाने में गुजार दूं, सिर्फ और सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए। ये शार, आप तो कम से कम ऐसी बातें ना करें। वो कहकर चली गई और ये शार सिकंदर ने वहीं अपना सर थाम लिया। हाले तो सिर थामे है ना, फिर सिर पिटेगा भी, अपना आप भी पिटेगा दोबारा के। अमान मेट्रो के बाद अब कॉलेज में था और हर वीकेंड पर ही आता था। अम्मा जान घर में अकेली होती है। इशार सिकंदर लाहौर, रबिया कॉलेज चली जाती। अम्मा जान को घर की वीरानी खाने को तोड़ती, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। रबिया इशार सिकंदर की पसंद थी। हालांकि इनका इरादा सुनान को अपने घर लाने का था, लेकिन ये बात इन्होंने सिर्फ अपने दिल तक ही महदूद रखी। वो नहीं जानती थी कि ये इशार सिकंदर भी इनकी ख्वाहिश जानता है। वो बेटे को खुश देखना चाहती थी। अगर वो रबिया के साथ भी खुश था तो फिर वो क्यों कर ऐसी बातें करती। दोपहर का वक्त था। वो खाना बना चुकी थी। रबिया अभी कॉलेज से लौटी थी। इन्होंने इसे फ्रेश होने का कर खुद खाना गर्म करने लगी। इतने में फोन की घंटी बजी। फोन रबिया ने रिसीव किया। न जाने फोन पर क्या कहा गया कि वो रोने लगी। अम्मा जान कांपते दिल से फौरन इसके कमरे में दाखिल हुई। बेटा क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मेरे बच्चे तो खैरियत से है ना? इन्होंने बेताबी से पूछा। रबिया ने गुस्से से इनकी तरफ देखा। अम्मा जान, इस दुनिया में आपके बच्चों के अलावा भी लोग बसते हैं। आपके बच्चे ठीक है, इन्हें क्या होना है? वो शायद बदलिहाज हो चुकी थी। मेरे भाई को पुलिस पकड़ कर लेगी। हाय मेरा भाई, भला क्या कर सकता है? वो तो बहुत मासूम है। वो अपने इकलौते भाई का जिक्र बहुत मोहब्बत से करी थी, जबकि अम्मा जान के बच्चों की अहमियत इसकी नजर में क्या थी? अपने सारे ने दुख देने। वो अम्मा जान को समझ आ चुकी थी। अम्मा जान अपनी बेवकूफ़ी के एहसास से बाहर चली और सोचने लगी कि ऐसी औरत है कि इसे अपने शौहर के बारे में कहते हुए जरा एहसास नहीं हुआ। इसने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि गुस्से में वो क्या गलत कह गई है। रबिया ने फौरन कुछ सोचते हुए यशार सिकंदर को फोन मिलाया। हेलो यशार, मैं रबिया बात कर रही हूँ। रबिया जल्दी से बोली। हाँ बोलो, खैरियत? तुमने फोन किया, घर पर तो सब खैरियत है ना? अम्मा जान की तबीयत ठीक है? वो इससे पूछने लगा। रबिया तो इस वक्त गुस्से से खौल उठी।
यशार, इस घर में और भी लोग रहते हैं, बहरहाल आप जल्दी घर आए, इमरजेंसी है। वो इसे सटता हैरत में छोड़कर फोन बंद कर गई थी। अगले 2 घंटे में वो घर पर था। रबिया इसी का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ है? वो जल्दी से बोला। यशार, मेरे भाई को पुलिस पकड़ कर लेगी, प्लीज आप इसे रहा करवा दें। वो आजी से बोली और यशार सिकंदर के अंदर इस बात ने इश्तियाल भर दिया। तुमने मुझे इस बात के लिए बुलाया और मैं पूरा रास्ता न जाने के समझता रहा। इतना परेशान ना तो मुझे फोन पर बता देती तो मैं वहां बैठकर भी कुछ ना कुछ कर सकता था। इसे रबिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसी बचकाना हरकत की इसे उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से अम्मा की तरफ चला गया जो बाहर ही खड़ी थी और रबिया पीछे गुस्से से खोलती रही। आधे घंटे के बाद अपने कमरे में आया, फोन मिलाया ताकि रबिया के भाई के बारे में जान सके। दूसरी तरफ न जाने क्या कहा जाता रहा। ये शार सिकंदर लब भेंचे सुनता रहा और फिर फोन रख दिया। रबिया ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। रबिया, दाऊद के पास से काफी मिकदार में मुंशियात बरामद हुई हैं। ये शार सिकंदर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर रबिया ने तेजी से नफी में सर हिला दिया। लेकिन दाऊद के पास ये आई कैसे? ये तो सरासर इल्जाम है। दाऊद ऐसा नहीं है। वो फिर बोली। देखो, अगर वो बेगुनाह हुआ तो कोई इसे सजा नहीं दे सकता और अगर ये इल्जाम सच साबित हो गया तो इसे सजा जरूर मिलेगी। वो इसे समझाने लगा। क्यों? आपकी अफसरी कब काम आएगी? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो तनक कर बोली। रबिया, मैं किसी भी गलत काम में कभी भी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर वो सच्चा है, बेगुनाह है तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगा, वरना नहीं। वो कहकर बाहर चला गया। तमाम मालूमात हासिल करके जब वो घर लौटा तो रात हो चुकी थी। दाऊद पर लगा इल्जाम सच था। इसे बहुत अफसोस हुआ कि वो ऐसा भी कर सकता है। इसने तमाम तफसील रबिया को बताई और किसी भी किस्म की मदद से इनकार कर दिया। रबिया का दिल यशार सिकंदर से बदगुमान हो चुका था। दूसरे दिन इसके वापस जाते रबिया ने अम्मा जान के खिलाफ महाज शुरू कर दिया। इसके ख्याल में सब किया था अम्मा जान का ही था। लानत है तेरे उत्ते बीबी। सोनान और हानिया फोर्थ ईयर के पेपर से देकर फारिग हुई तो वासी और हानिया की शादी का सिलसिला शुरू हो गया। सोनान भाई की शादी बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती थी, तभी इसने शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हफ्ते पहले सोनान की ख्वाहिश पर घर में ढोलकी रख दी गई। अम्मा जान भी अमान के साथ शहर पहुंच गई थी। रबिया ये शार सिकंदर ने मेहंदी के दिन पहुंचना था। सोनान को देखकर अम्मा जान को काफी हैरत हुई। इन्हें काफी बदली बदली सी दिखाई दी। सोनान, तुम तो लगता है भूल ही गई हो, कभी फोन नहीं किया और ना ही चक्कर लगाया। वो इससे पूछने लगी। फुप्पो जान, मैं अभी तो फाइनल ईयर के एग्जाम्स देकर फारिग हुई हूँ, फिर भाई की शादी की तैयारियां शुरू होगी तो टाइम ही नहीं मिला। आपने बुलाया तो जरूर आऊंगी। वो इनके पास बैठते हुए बोली तो इन्होंने इसे अपने साथ प्यार से लगा लिया। मेहंदी की तकरीब अरूज पर थी। सब अपनी अपनी तैयारियों में मशगूल थे। मेहंदी चूंकि कंबाइन थी, इसका इंतजाम बाहर लॉन में किया गया। सोनान इस वक्त अपनी तैयारियों में मसरूफ थी। आज काफी अरसे के बाद वो दिल से तैयार हुई थी। वासी और हानिया को स्टेज तक बारी बारी लाया गया। जिस वक्त सोनान हानिया को मेहंदी लगाने के लिए स्टेज पर आई तो सामने से यशार सिकंदर अपनी तरफ मतवज्जा नजर आया। यशार सिकंदर आज 1 साल बाद इसे देख रहा था। न जाने को इसे देखकर सुनान की कही सारी बातें ज़हन में चली हैं। यशार सिकंदर के दिल में कुछ खोने का एहसास जागा। वो इस वक्त अपने इर्द गिर्द से बेनियाज इसे देख रहा था जो आज इसे नजरअंदाज करके चली गई थी। लानत तेरे उत्ते पे, हुन कादियां अखा सेक रहे हैं, हुन परे मर जाके दफा हो। बहुत चंगा किता इन्हें, इदा होइया जिस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता। रबिया ने यशार सिकंदर को 1-2 बार पुकारा तो वो होश की दुनिया में आया। यशार, क्या बात है? रबिया ने खोजते हुए पूछा। आ हाँ, कुछ भी नहीं। वो गायब दिमाग से बोले। रबिया हैरान सी होगी। मेहंदी की तकरीब जैसे खत्म हुई तो वो अम्मा जान से जरूरी काम का बहाना करके वापस चला गया। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों है, क्यों वो इससे भागकर चला है, क्यों इससे दूर हुआ। वो ड्राइविंग करते हुए सोचा जा रहा था। कसमान खा हूं तो जो मर्जी सोच ला, हूं तो कुछ नहीं हो सकता। शादी की तकरीब खत्म हुई तो अम्मा जान ने भी वापसी का प्रोग्राम बना लिया। रबिया या शार सिकंदर के साथ वापस चले जाने की वजह से शशोपन में थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जो वापस चला गया। जिस वक्त वो गांव पहुंचे शाम हो चुकी थी। रबी अपने कमरे में दाखिल हुई तो कमरे को अंधेरे में डूबा पाया। इसने लाइट ऑन कर दी। सामने यशार सिकंदर इजी चेयर पर आंखें मूंदे बैठा था। यशार, वो इसे पुकारती आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सोनान, प्लीज लाइट ऑफ कर दो। वो तेजी से बोला मगर सामने खड़ी रबिया को देखकर इसे अपने अल्फाज का एहसास हुआ। रबिया का चेहरा इस वक्त गम और गुस्से की तस्वीर बना हुआ था। अच्छा, अब मैं समझी कि चक्कर क्या है। वो कौन सा जरूरी काम था जो आपको करना था? आपको तो अपना गम मनाना था। वो हाथ नचाकर बोली। प्लीज रबिया, आई एम सॉरी, गलती से मेरे मुंह से सुना। वो वजाहत देने लगा तो दरमियान में रबिया ने इसको टोक दिया। क्या गलती से? आप तो खुद को बहुत मिच्योर समझते थे, तो ये टीनेजर्स वाली हरकतें क्यों करें? क्यों इस वक्त अपनी नाकाम मोहब्बत का गम नहीं मना रहे आप? वो सवालिया अंदाज से बोली। रबिया, शट अप, बंद कर अपनी फजूल गोई। वो गुस्से से थाड़ा। रबिया रोने लगी। देखो रबिया, वो मुझे बिल्कुल अमान की तरह अजीज है। क्यों गलत फहमी का शिकार हो रही हो? वो इसे समझाते हुए बोला। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जब वो आपको पसंद थी तो इससे शादी कर लेते। आप मेरी जिंदगी की तबाह की। वो जोरों जोर से चीखते हुए बोली। इशार ने बमुश्किल खुद को हाथ उठाने से रोका। इतने में अम्मा जान भी शोर की आवाज सुनकर आ गई। रबिया इन्हें भी सुनाने लगी। इनका सब जवाब दे गया। अम्मा जान, आप ही समझाएं इसे, बंद करे बकवास अपनी। वो कहकर खुद कमरे से बाहर आ गया। अम्मा जान ने तहम्मुल से रबिया से लड़ाई की वजह पूछी तो इसने चीखते हुए इन्हें सूरत हाल बताई और साथ ही ने भी कसूरवार ठहरा दिया। अम्मा जान सर थाम कर रह गई। बस फिर जो कोई ज्यादा सियाना होंदा ना, ज्यादा सियाना फिर गंद ते ही डिगदा ते फिर उन्हां दे ही हालात होंदे ने। यशार सिकंदर वापस चला गया। रबिया इससे नाराज थी। यशार ने इसे मनाने की कोशिश भी की मगर बेसुध।
वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इसके दिल में शक का कांटा चुभ चुका था। याशार सिकंदर के जाने के ठीक 1 हफ्ते बाद अम्मा जान की तबीयत खराब हो गई। अमान तो यहाँ होता नहीं था। रबिया ने घर में इन्हें कुछ दवा वगैरह दे दी और अपने फर्ज से सुबकदोश हो गई। अम्मा जान बुखार में तड़प रही थी और रबिया सुबह कॉलेज चली गई। वापिस आई तो याशार सिकंदर को घर में मौजूद पाया। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया कि अम्मा जान की तबीयत इतनी सख्त खराब है? वो इसके सर पर सवार पूछ रहा था। मैंने कहा मामूली बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी और थोड़े काम है आपको। वो दलेरी से बोली। याशार सिकंदर इसकी आखिरी बात को तो बर्दाश्त कर गया। वाह रबिया बेगम वाह, जब तुम्हारा भाई जेल में था तो इस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं परेशान होऊंगा? सारा रास्ता मैंने इस दिन परेशानी में गुजारा। अब जबकि अम्मा जान इतनी सख्त बीमार है तो तुमने मुनासिब नहीं समझा? कैसी औरत हो तुम? वो अफसोस से बोला। हाँ मैं तो बुरी हूँ, तो फिर क्यों की मुझसे शादी? अपनी सुनान से कर लेते जिसने न जाने क्या घोल कर पिला दिया। अब आपको सिर्फ वही दिखाई देती है और सुनाई भी वही देती है। वो कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इशार सिकंदर ने तासुब से चाहती हुई रबिया को देखा जो अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी, मगर वो अफसोस के अलावा और क्या कर सकता था। इस वक्त इसे सिर्फ अम्मा जान की फिक्र खाई जा रही थी। इसे अब रबिया पर एतबार नहीं रहा था। न जाने इसकी गैर मौजूदगी में अम्मा जान के साथ क्या सलूक रमा रखे। शुक्र बीबी के तेनू पाई, बीबी नहीं पाई। शुक्र तेन भी उन ख्याल आया। वो शहर वापस आ तो गया, मगर इसे मुसलसल अम्मा जान की फिक्र थी। अब इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। रबिया इसके लिए बिल्कुल अच्छी बीवी साबित नहीं हुई थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद सोचती थी। इससे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं थी। दूसरों को इल्म सिखाने वाली ये बात नहीं जानती थी कि इंसानियत के किस तरह काम आया जा सकता है। इसके बावजूद इसे रबिया के साथ अपनी जिंदगी का सफर गुजारना था। समझौते की शक्ल जरूर मौजूद थी। भाई इदा दे कम्मा जी थे, इदा ही होंदा है। वो रोज फोन करके अम्मा जान की खैरियत दरियाफ्त करता। इस तरह इनसे बात करके इसे इत्मीनान हो जाता कि वो ठीक ठाक है। रबिया से भी कभी कभार बातचीत हो जाती। इसका रवैया काफी जारहाना हो चुका था। वो इससे उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। इसके भाई को भी सजा हो चुकी थी। इस बात का भी इसे काफी दुख था। अपने ਨੂੰ तकलीफ हो रही ਤੇ बड़े सेके ਵੱਜ ਰਹੇ रबिया बीबी ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ किसी दूसरे ਦਾ तकलीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ सही हो। इस दिन भी वो अपने ऑफिस से सीधा घर जा रहा था कि रास्ते में मुर्तजा मामू का फोन आ गया। जी मामू खैरियत, आपने कॉल की? इसने हैरत से दरियाफ्त किया। खैरियत ही तो नहीं है, हमारे यहाँ अगर अभी पहुंच सकते हो तो आ जाओ। मुर्तजा मामू ने काफी संजीदगी से जवाब दिया। वो सोचता वहां पहुंचा सभी बैठे शायद इसी का इंतजार करते। वो सबको सलाम करते सोफे पर बैठ गया। मामू आपने याद किया था? इसने मुर्तजा मामू से पूछा। रब्बी आई थी यहाँ। ये बात ये शार सिकंदर के दिमाग पर धमाके की तरह लगी। वो बैठे से खड़ा हो गया। क्या रबिया यहाँ आई थी? मगर क्यों? वह सवालिया नजरों से इन्हें देखने लगा। यशार क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? इन्होंने इसके सवाल को नजरअंदाज करके पूछा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसने पूछा। यशार वो कहकर गई है कि मुर्तजा मामू ने कुछ कहते कहते लब भेज लिए। वासी ने इनके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें इत्मीनान दिलाया। यशार सिकंदर ने वासी की हैरत से देखा। पापा आप अपने कमरे में जाए, मैं खुद इनसे बात करता हूँ। वासी ने मुर्तजा साहब को कमरे में भेज दिया। अब वो दोनों अकेले थे। यशार सिकंदर ने वासी की तरफ पुरसोच निगाहों से देखा। वासे मुझे बताओ, मेरा जब्त जवाब दे रहा है। इसने पूछा। ये शार भाई आज सुबह रबिया भाभी अचानक चली है। मैं हानी और सनान के साथ लॉन में था। इन्होंने सनान को खूब लान तान की कि वो आप दोनों का घर बर्बाद करने की कोशिश करी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरी बहन पर इल्जाम लगाए, जबकि मैं हम सब और आप भी जानते कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर किस बुनियाद पर वो सब कह रही थी? इसलिए मेरी इनके साथ काफी तकरार हुई और वो और भी बहुत कुछ कहकर गई है। इसलिए आपको फोन करके हकीकत मालूम करना चाहिए थी। अगरचे मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगा कि आप रबिया भाभी की गलतफहमी दूर करें। वासे कुछ पल कुछ खामोश हुआ। ये शार सिकंदर शर्मिंदगी से दोनों हाथों से सर थाम लिया और फिर जब बोला तो इसका लहजा काफी मजबूत था। वासे तुम फिक्र मत करो, सुनान इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है और रही बात रबिया की तो इसे मैं खुद समझा लूंगा। कहते वो लंबे लंबे डग फटता चला गया। वासे खामोशी से न चाहता देखने लगा, फिर कुछ सोचकर सुनान के कमरे की तरफ चल दिया जिसने सुबह से रो रो कर अपना हाल खराब किया हुआ था। हानिया मैंने कभी इन दोनों का घर बर्बाद करने की कोशिश नहीं की। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? ये सच है कि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने अपनाना चाहती थी, लेकिन शायद वो मुझसे ऐसी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए उन्होंने रबिया से शादी कर ली। लेकिन ये बात गलत है कि मैंने डोरे डालने की कोशिश की। तुम जानती हो मैं ऐसी नहीं हूँ। वो इसका हाथ थाम कर बिलक बिलक कर रो दी। इसे खुद पर लगाया जाने वाला इल्जाम बहुत घटिया लगा। हानिया खामोशी से इसके आंसू साफ करती रही। वासी जो सुनान के रूम की तरफ आया था वहीं से पलट गया। इसे सुनान की बातें सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा था। हैरत तो होनी है बेचारे ਨੂੰ। ये शार सिकंदर जिस वक्त घर पहुंचा, रबिया सहन में बैठी फोन पर किसी से बातें कर रही थी। ये शार सिकंदर ने इसका मोबाइल छीन कर बंद कर दिया। ये क्या तरीका है? मैं इतने जरूरी फोन कर रही थी। वो गुस्से से बोली। वैसे टीचर है लेकिन है पूरी जाहल। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? मैं तो तुम्हें बहुत काबिल बहुत मिचोड़ समझता था, मगर शायद मैं गलत था। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? वो गुस्से से धाड़ा था। क्या किया मैंने जो आप इस कदर गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर? वो अनजान बनते हुए बोली। अच्छा तो अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि तुमने क्या किया। तुम क्यों गई मुस्तफा मामू के घर? क्यों तुमने वहां जाकर बकवास की? वो इसे दोनों बाजू से पकड़ते हुए बोला। मैंने ठीक किया जो वहां गई, और जो कुछ वहां जाकर कहा वो भी बिल्कुल सच था। आखिर इनको भी तो अपनी बेटी के
अब इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि यशार सिकंदर का भारी हाथ उठ गया। झूठ है ये सब। इसने कभी मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश नहीं की। यशार सिकंदर गुस्से से बोला। रबिया गाल पर हाथ रखे और जोर से चीखने लगी। बंद करो बकवास अपनी। अगर आइंदा तुमने सुनान के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसे वार्न करता फिर से गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी शहर के रास्ते पर डाल दी। इसकी गाड़ी इस वक्त हवा से बातें कर रही थी। इसे रबिया पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। इतनी बड़ी बात इसने कर दी थी कि अब वो किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। वो अपने ख्यालों में गुम था कि इसकी गाड़ी सामने से आती गाड़ी से जा टकराई। चलो हो गया स्यापा। लेकिन ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ये होएगा वो होएगा चलो ਹੁਣ करा ला बदनामियां तो नेकनामियां। अम्मा जान को जब एक्सीडेंट की इत्तला मिली तो इन्होंने रबिया से साथ चलने को कहा लेकिन इसने कमाल बेमुरव्वती से इनकार कर दिया। अम्मा जान तासुब से इसे देखने लगी लेकिन वो बेनियारी से अंदर पड़ गई। अम्मा जान हमसाये के बेटे के साथ शहर रवाना हुई और साथ ही भाइयों को भी फोन कर दिया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंची सभी आ चुके थे। यशार सिकंदर इस वक्त बेहोश था। वो सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशान खड़े थे। इतने में डॉक्टर बाहर आ गया। यशार साहब के साथ कौन है? मुर्तजा मामूर बासे डॉक्टर की तरफ बढ़े। अम्मा जान भी उठ खड़ी हुई। मरीज का खून बहुत बह चुका है, आप लोग फौरन खून का बंदोबस्त करें, डॉक्टर ने कहा तो इन्होंने इस बात में सर हिला दिया। खतरे की कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? मुर्तजा साहब ने पूछा। देखें फिलहाल तुम कुछ नहीं कह सकते, एक्सीडेंट बहुत शदीद नवैयत का था, इनकी टांगों पर काफी चोटें आई हैं, आप लोग बस दुआ करें। डॉक्टर अंदर की तरफ बढ़ गया जबकि मुर्तजा साहब फरहाना बेगम को तसल्ली देने लगे जो रोती आंखों से अल्लाह को याद कर रही थी। सुनान को जब ये शार सिकंदर के एक्सीडेंट का पता चला तो वो सख्ते किसी कैफियत में चली गई। हानिया इसे तसल्ली देते हुए खुद भी रो पड़ी। सुनान इसे खाली नजरों से देखने लगी। सुनान होश करो, अभी कोई अच्छी इत्तला इनके बारे में आ जाएगी। वो इसे समझाने लगी। सुनान, हानिया ने इसका कंधा हिलाया तो बिलक बिलक कर इसके साथ लगकर रोने लगी। ये कैसे हो सकता है? वो रोते हुए बोली। वो इस वक्त शायद अपने हवासों में नहीं थी। हानिया से साथ 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 दिलासा देने लगी। बीबी हाले हवासों के आएगी, हवासों में आने में टाइम लगेगा बीबी को। तकरीबन 2 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर पर इंतजार करते रहे। जब डॉक्टर निकला तो वासे ने इसकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? वासे ने पूछा। जी बाकी सब तो ठीक है लेकिन हम इनकी टांगों के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। 50% चांस है, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर आगे बढ़ गया। अम्मा जान वहीं बैठकर रोने लगी। मुर्तजा साहब और वासे खुद शौक में थे। घर पर भी इत्तला कर दी गई। सुनान समेत सभी सकते की हालत में थे। खबर ही ऐसी थी। फरहाना बेगम बेटे की हालत देखकर मजीद कमजदा हो गई। सभी फरहाना बेगम को दिलासा दे रहे थे लेकिन ये जख्म ऐसा था जो आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ना था। रबिया फरहाना बेगम के अस्पताल जाने के बाद ही अपने मैके चली आई थी। जब इसे ये शाश सिकंदर की टांगों के कुचलने का पता चला और साथ ही खबर कि शायद अब वो दोबारा कभी अपने पाँव पर खड़ा हो सके तो इसने खुला का नोटिस भी भिजवा दिया। अम्मा जान जो जो बेटे के लिए पहले बहुत परेशान थी, इस बात ने इनके गम में मजीद इजाफा कर दिया। ये शार सिकंदर सब जान चुका था। अम्मा जान, ये सब कुछ तो होना ही था, भला एक डिसेबल शख्स के साथ कौन पूरी जिंदगी गुजार सकता है? वो बेड पर दराज आंखें मूंदे हुए बोला तो इसकी बंद आंखों से आंसू गिरने को बेताब से हुए। इसने बदिक्कत इन पर काबू पा लिया। अम्मा जान बेटे की लाचारगी देखकर रो पड़ी, फिर बेटे की हिम्मत बंधाते हुए बोली, बेटा तुम हिम्मत से काम लो, अपने आप को संभालो, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। वैसे भी डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि तो अगर तुम खुद कोशिश करो तो थोड़ी बेहतरी ला सकते हो। फिर हम 6 माह के बाद तुम्हारा ऑपरेशन करवाएंगे, यहाँ इलाज नहीं हो सका तो बाहर ले जाएंगे, इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अम्मा जान इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। अम्मा जान तेरे को बाहर ले जाने का पैसा है? सोनान जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने हानिया को अपने इंतजार में पाया। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रही हो? सोनान ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। बात ही कुछ ऐसी है, अभी भी फुप्पो की कॉल आई थी, ये शार भाई ने रबिया को तलाक दे दी है। हानिया ने जैसे धमाका किया। सोनान ने हैरानगी से इसे देखा। ये कैसे हो सकता है, वो तो रबिया को बहुत चाहते थे। सुनान ने पुरसोच अंदाज में पूछा। हाँ लेकिन सुनने में यह आया कि रबिया ने खुद खुलाकर नोटिस भिजवाया था। रबिया को जब पता चला कि ये शार भाई अब शायद उम्र भर अपनी टांगों पर चल सके, इसलिए उन्होंने लैदगी इख्तियार की। सुनान आंखों से इसे देखने लगी। हानिया, क्या रबिया को इनसे मोहब्बत नहीं थी? वो इसके कंधे पर सर कर रखते हुए बोली। क्या कह सकते हैं? हानिया कोई जवाब नहीं दे सकी। हानिया, इन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? सुनान रबिया के हवाले से खौफजदा थी। भला तुम्हारा नाम क्यों लेगी? वो तुम नहीं जानती, रबिया ने ये शार भाई की जिंदगी मुश्किल में डाल रखी थी। पुप्पो को भी इतना तंग रखा। ये शार भाई तो हर सूरत समझौता करना चाहते थे लेकिन रबिया किसी तौर नहीं मानी। पुप्पो तक इसे मनाने गई मगर इनकी इसकी ना हाँ में नहीं बदली। हानिया ने इसे तफसीलन बगा किया। चलो फेले होए, ये शार सिकंदर नाल तो चंगी हुई। ये शार सिकंदर तकरीबन 2 माह हॉस्पिटल रहने के बाद घर आ चुका था। फरहाना बेगम ने घर आते बेटे का सदका उतारा। डॉक्टर्स ने यह शार सिकंदर को आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करने का मशवरा दिया। यही वजह थी कि अब वो सिपाही गुल मोहम्मद की जेर निगरानी रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा था।
گل محمد اس کے محکمے کا بندہ تھا جو شہر میں اس کے لیے کام کاج کے لیے ساتھ تھا. ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ اگر وہ خود کوشش کرے ہمت کرے تو 6 ماہ بعد آپریشن کے قابل ہو جائے گا. 3 ماہ ایکسیڈنٹ کو ہو چکے تھے لیکن صورتحال حوصلہ افزا نہیں تھی. وہ سہارے کے باوجود چند قدم سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا. اماں جان بیٹے کو دیکھ کر اندر ہی اندر ہمت و حوصلہ ہار رہی تھی. شہر سے سبھی ملنے کے لیے گاؤں آئے لیکن سنان نہیں آئی. اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا. ماسٹرز کرنے کے بعد وہ آج کل ایک بینک میں جاب کر رہی تھی. یشار سکندر کو یوں لگا جیسے وہ بھی ربیہ کی طرح اس سے دور جانا چاہ رہی ہے. اسی لیے اسی سوچ نے یشار سکندر کے دل میں پھر سے غم و غصہ بھر دیا. ہاں تیرے غلامیاں کری جاوے تینو منہ لائی جاوے تو اگر کسی قابل نہ سمجھے وغیرہ چیز. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے. اماں جان پچھلے ایک ہفتے سے بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی. اس نے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دی تھی. بات کرنا کم کر دی تھی کہ انہی دنوں سنان کا فون آ گیا. ہیلو یشار سکندر اسپیکنگ. یشار کی آواز سنان کے دل کی پر دستک دینے لگی مگر اس نے خود کو فوراً کمپوز کر لیا. ایس پی صاحب بہت افسوس ہوا. آپ کی محبت آپ کو چھوڑ کر چلے گی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کی عادت کو نہیں آئی الٹا آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑک رہی ہوں. کیا کروں یہ عادت بھی آپ ہی سے سیکھی ہے. یہ شار سکندر جو اس کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنان اس سے کبھی ایسی بات بھی کر سکتی ہے. اس نے غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا اور تب سے وہ سنان پر آیا غصہ دوسروں پر اتار رہا تھا. صحیح ہے ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ every action has a reaction but in its opposite direction. ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੱਪੀਆਂ ਛੱਪੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ. سنان تم جانتی ہو تم نے کتنا دل دکھایا یہ شار بھائی کا. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس طرح سے بدلہ لوگی ان سے. ہانیہ سنان سے اس دن سے ناراض تھی جس دن اس نے یہ شار کو فون کیا تھا. ہانیہ میں جانتی ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ برا کیا. انہیں میری بات سن کر دکھ ہوا ہوگا. نہ جانے کیوں ہانیہ میں چاہتی ہوں مجھے ڈانٹے بالکل ویسے جیسے پہلے ڈانٹتے تھے غصہ کرتے تھے. وہ جان جائے کہ میں کیا چاہتی ہوں. وہ جان جائے کہ میں نے کیوں یہ سب کچھ کیا. وہ نم لہجے میں بولی بی بی تو دیوی نکلی. ہانیہ میں نے بے بس نہیں دیکھ سکتی. شاید اسی لیے انہیں غصہ دلا رہی ہوں. تم جانتی ہو وہ مجھے بے حد عزیز ہے اور جو کچھ میں نے ان سے کہا میں ان سے اس کی معافی مانگ لوں گی. پہلے وہ ہمت ہارنا چھوڑ دیں پھر ابھی انہیں تھوڑا سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا یہ سب کچھ. وہ مسکراتے ہوئے بولی تم کبھی نہیں سدھر سکتی. ہانیہ سے چڑھاتے ہوئے بولی تو وہ بھی اس کے ساتھ مسکرانے لگے. بی بی تو دیوی نکلی. خان بلا میں آج کل سنان کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی. ایک دو بہت اچھے رشتے بھی تھے. مرتضی خان کا ان دونوں میں سے کسی ایک کو مثبت جواب دینے کا ارادہ تھا. اسی مقصد کے لیے ہانیہ کو سنان کے پاس اس کی مرضی پوچھنے کے لیے بھیجا گیا. سنان تو سنتے ہتے سے اکھڑ گئی. مار لو تو جوگلا کہ بھائی ساری زندگی ہو دے ہستے. ہانیہ تم کہہ دو میں نے بھی شادی نہیں کرنی. سنان سنجیدگی سے بولی. سنان دیکھو دونوں لڑکے اچھے گھرانوں کے. مرتضی انکل نے تمہاری مرضی پوچھنے کو کہا تو بتاؤ میں ان کو کیا جواب دوں. ہانیہ سے سمجھاتے ہوئے بولی تم کہہ دو میں نے انکار کر دیا. پاپا پوچھیں گے تو میں کوئی نہ کوئی تسلی بخش جواب دے ہی دوں گی. سنان پھر بولی میں وجہ پوچھ سکتی ہوں. ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا. وجہ تم جانتی ہو. سنان بولی. سنان کوئی نہیں مانے گا. پہلے کی بات اور تھی لیکن اب تم رہ لو گی ان کے ساتھ. ان کی بیوی تک تو چھوڑ گی ان کو. ہانیہ نے پھر سمجھایا مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے. ہانیہ نے واسع کو ساری حقیقت بتا دی. واسع سن کر تو کچھ پل کے لیے شوق میں آ گیا. ہانیہ تم سمجھاؤ اس بیوقوف لڑکی کو. پاپا کبھی نہیں مانیں گے. اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا. ہانیہ اس کی طرف متوجہ تھی. کیا یہ شار بھائی نے کچھ کہا اس سے؟ واسع نے پوچھا تو ہانیہ نے فوراً اس بات کی نفی کی تو واسع کو کچھ اطمینان ہوا اور اس نے ایک سکون بھرا سانس لیا. آپ کیا مرتضی انکل سے بات کریں گے؟ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا. تمہارا دماغ صحیح ہے. پاپا کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. وہ کبھی نہیں مانیں گے. یہ سچ ہے کہ ہم سب یہ شار بھائی کو بہت چاہتے ہیں لیکن سنان اور یہ شار بھائی پہلے اگر یہ بات ہوتی تو شاید مان لی جاتی لیکن اب ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد بہت مشکل ہے. اور ہانیہ سوچ رہی تھی کہ محبت کرنے والوں کو سب سمجھانا بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی محبت کو بھول جائیں. دیکھنے کیڑا کدی جیت ہوندی تے کدی ہار ہوندی. یہ شار بھائی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی. ہانیہ واسع کے ساتھ یہ شار سکندر کو دیکھنے آئی تو اس کے کمرے میں چلی آئی. یہ شار سکندر نے کتاب گود میں رکھی اور اس کی طرف متوجہ ہوا. ہاں کہو کیا بات کرنی تھی. یہ شار سکندر کی آواز کمرے میں گونجی. سنان نے اس دن آپ کو فون کیا تھا. اس کا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا. ہانیہ آہستگی سے بولی. اشار سکندر کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو گیا. میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ دو ٹوک لہجے میں بولا. یشار بھائی پلیز میری پوری بات تو سنیں. وہ سنان کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی حالانکہ سنان نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا اور پھر ہانیہ نے یشار سکندر کو ساری بات جھجکتے ہوئے بتا دی. ہانیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا مگر یشار سکندر کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. ہانیہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ یشار سکندر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا. وہ بالکل خاموش ہوگی. اب تم جا سکتی ہو. یشار سکندر کی آواز سنائی دی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور پھر باہر آ گئے.
इशार सिकंदर ने इसकी जाते सुनान का नंबर मिला। सुनान, सजा के लिए तैयार रहना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने होऊंगा। साथ ही फोन खटाक से बंद कर दिया। इशार सिकंदर के लबों पर इस वक्त बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी और दूसरी तरफ सुनान को एक नई फिक्र लाहक हो चुकी थी। हम्म, मुस्कुराहटा सी। इशार सिकंदर 6 माह बाद आज फिर से अस्पताल में मौजूद था। डॉक्टर मंसूर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। अभी नई रिपोर्ट का इंतजार था। डॉक्टर साहब, कितने परसेंट चांस है? इशार सिकंदर ने खुद डॉक्टर से पूछा। ये सवाल कबल अज वक्त है। रिपोर्ट्स के बाद ही बताया जा सकता है कि ऑपरेशन हो सकता है या नहीं, डॉक्टर ने तफसीलन जवाब दिया। रिपोर्ट्स आ गई तो अम्मा जान की खुशी दीदनी थी। डॉक्टर के मुताबिक काफी बेहतरी का चांस था। अम्मा जान, मैं चाहता हूँ भी किसी को भी इस बारे में ना बताया जाए। मैं पहले ऑपरेशन करवा लूँ तो फिर जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। इशार सिकंदर ने अम्मा जान से इजाजत तलब नजरों से कहा। लेकिन बेटा, ये कैसे मुमकिन है? तुम नहीं जानते जब सबको पता चलेगा तो वो कितना खुश होंगे, अम्मा जान ने इसे समझाया। वो तो ठीक है अम्मा जान, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन प्लीज अभी कुछ दिन रुक जाए। इशार सिकंदर ने अम्मा जान के दोनों हाथ थाम लिए तो अम्मा जान ने बेटी की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा जी, देखने की बंद। रिपोर्ट्स क्लियर होने के ठीक 2 हफ्ते बाद इसका ऑपरेशन कर दिया गया। वो 2 माह अस्पताल रहा और जब वो बगैर सहारे के चलने फिरने के काबिल हुआ तो डॉक्टरों ने इसे घर जाने की इजाजत दे दी। अम्मा जान ने इसके मना करने के बावजूद सबको इस खुशी की इत्तला दे दी। सभी मिलने चले। वहीं इशार सिकंदर को हानिया की जुबानी सुनान के इस्लामाबाद जाने का पता चला, जहाँ वो इंटर्नशिप के लिए गई थी। वो सब अपनी बातों में मसरूफ थे। वहीं अम्मा जान ने मुर्तजा साहब से सुनान और ये इशार सिकंदर के रिश्ते की बात कर दी। ये इशार सिकंदर हैरान रह गया क्योंकि अम्मा जान ने इससे कोई जिक्र नहीं किया था। हानिया को जब ये पता चला तो इसकी खुशी देखने के लायक थी। मुर्तज़ा साहब गहरी सोच में गुम थे। शायद इसकी वजह ये थी कि इशार सिकंदर की दूसरी शादी थी। अम्मा जान ने शायद अपने भाई की सोच पढ़ ली थी। मुर्तज़ा भाई, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि सुनान को अपनी बहू बनाऊं, लेकिन शायद ये इशार की जिंदगी में पहले रबिया को आना था, वो दुख भरे लहजे में बोली। पहले याद नहीं आई हुन अंदी जिंदगी जोनू आना सी, लेकिन ये मेरा वादा है कि सुनान इंशाल्लाह यहाँ बहुत खुश रहेगी। इन्होंने मजीद कहा। ये इशार सिकंदर को भी अब मुर्तज़ा साहब की खामोशी ने परेशान सा कर दिया था। वो इनके चेहरे की तरफ हैरानगी से देखने लगा। इसी दम मुर्तज़ा मामू ने फरहाना बेगम और फिर यशार सिकंदर की तरफ देखा। ये सब इन्हें देख रहे थे। फरहाना, यशार मुझे बहुत अजीज है, बिल्कुल सनान की तरह। अगर तुम ये सवाल पहले करती तो भी मेरा जवाब हाँ ही होता। मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी बेटी यकीनन यशार के साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगी, मुझे कोई एतराज नहीं। भाई पहले पहुंचते ला बेटी को लो। मुर्तज़ा साहब के जवाब ने वहां बैठे सब नफूस को हैरान कर दिया और फिर सबका दिल खुशी से झूम उठा। आने जल्द से जल्द ये खबर सुनान को सुनाना चाहती थी। इशार सिकंदर ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। वो खुद इस पागल लड़की का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। हानि ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। हाँ, हाले कोई रद्द-ए-अमल देखने वाली कसर रह गई है ना तेरी, जेह्ड़े तू होर चस्के पूरे करने अपने। सुनान जब वापस लौटी तो सबने बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया। वो हैरान सी रह गई, लेकिन साथ ही जब शादी की खबर ने इसे चकरा कर रख दिया। मैं अभी पापा से बात करती हूँ। वो बगैर सोचे समझे मुर्तज़ा साहब के कमरे की तरफ चल दी। टीवी लाउंज में से हानिया मिल गई। कहाँ जा रही हो? हानिया ने पूछा। पापा से कुछ बात करनी है, वो दो टोक लहजे में बोली तो हानिया से जबरदस्ती वापस कमरे में ले और समझाने लगी। हानिया, तुम मुझे बता सकती थी, क्यों नहीं पहले बताया? वो इसे झंझोड़ते हुए बोली। वो इस वक्त अपने आप में नहीं थी। सुनान, होश के नाखून लो, क्यों तुम सबको परेशान करती हो? जो होना था हो गया, हानिया बोली। हानिया, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे किसी तारिक वारिक से शादी नहीं करनी, बता दो सबको, वो तेज लहजे में बोली। तारिक, तुमसे किसने कहा ये सब? हानिया ने हैरानगी से पूछा। फिर जब अपनी बात पर गौर किया तो फौरन बोली। मेरा मतलब, तुम्हें किसने ये सब बताया? हानिया, अभी फोन आया था ये शार सिकंदर का। इन्होंने मुझे बताया कि मुझे सजा देना चाहते, इसलिए मेरी हालत से महजूज हो रहे थे। वो बिल्कुल रो देने वाली होगी। हानिया बेचारी सूरत हाल में क्या कर सकती थी? इसे तो खुद ये शार सिकंदर ने मना कर रखा था, बल्कि सबको, सभी इसकी निराली मंतक पर हैरान थे। जा मर जाके, पहले भी तेरे बल्लों से आती सी हुन फिर। वो तो बीबी पागल हुई पई ओदे पीछे, लानत भेज इसके ऊपर। भाई अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले है, बाकी जड़ी है इश्क मशूकियां, लाख दी लानत भेजो। जब शादी होगी उसके बाद सारी इश्क मशूकियां हो जाएंगी अगर नसीब में हुई तो। सुनान शादी से बार बार इनकार करी थी, लेकिन इस बात से किसी के सर पर जू तक नहीं रेंगी। सब शादी की तैयारियों में मसरूफ थे कि इन्हीं दिनों ये शार सिकंदर अम्मा जान के साथ चला है। सुनान और अम्मा जान की मुलाकात काफी अरसे बाद हो रही थी। अम्मा जान ने इसे मोहब्बत से अपने साथ लिपटा लिया। ये शार सिकंदर वासे के कमरे में था। शायद सुनान और इसकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई थी। पुप्पो के पास कुछ देर बैठते हुए इसे इशार सिकंदर की शादी का पता चला। वो हैरत से पुप्पो की तरफ देखने लगी। नहीं है इशार सिकंदर, अब नहीं। अब मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। आप मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। वो दिल में तहैया करती पुप्पो के पास से उठी और सीधी वासे के कमरे में चली, मगर वहां कोई नहीं था। वो लब भेंचे अपने कमरे की तरफ चलती। अजीब पागल बीबी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ख्याल ही नहीं है। पहले तो डड्डा भैड़ा ने तो तुकारिया ते हुन फिर ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲਾ।
سونان نے جیسے لائٹ آن کی تو اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی. یشار سکندر سامنے پوری شان سے صوفے پر براجمان تھا, وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہوگی. سونان, کیوں تنگ کر رہی ہو تم سب کو؟ جانتی ہو سب کتنا پریشان ہے تمہاری وجہ سے. یشار سکندر نے بات کرنے میں پہل کی. وہ آج کافی عرصے بعد اسے اپنے روبرو دیکھ رہی تھی. میں کسی کو پریشان نہیں کر رہی, اور نہ ہی میں کوئی بچی ہوں. 22 سال کی ایک میچور لڑکی ہوں. وہ میچور پر زور دیتے ہوئے بولی. سونان, تمہیں خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی ہو, تمہیں کوئی بھی اچھا شخص مل سکتا ہے تو پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ آج اس سے واضح انداز میں پوچھ رہا تھا. وہ اس کے دل کا حال جاننا چاہتا تھا. وہ چلتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی. بی بی تو پہلے قدموں میں بیٹھی پئی ہے, تیری کی عزت ہونی ہے ہے. آپ کی کمی ہے, صرف آپ کی. آپ کو سب کی پرواہ, سب کی فکر ہے, صرف میری پرواہ نہیں ہے. آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ وہ آج اسے شکوہ کر رہی تھی. وہ تو کب کا اس کی محبت میں ہار چکا تھا, بس اقرار کرنا باقی تھا. ایک ادھورے شخص کے ساتھ رہ لو گی تم؟ وہ اسے پھر آزمانے لگا. آپ ادھورے نہیں ہیں, میں ادھوری ہوں آپ کے بنا. اور جہاں تک اس حادثے کی بات ہے تو وہ کسی کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے. میرے لیے آپ وہی یشار سکندر, اور میں ربیہ نہیں ہوں جو آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی. نکال دے وہم اپنے دل و دماغ سے. وہ بہت خاموشی سے اسے سن رہا تھا. پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یشار نے نہایت آہستگی سے اپنے گھٹنوں پر تھرے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو تھاما اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا. سنان نے سر اٹھا کر پہلے اسے, پھر اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی. آپ چل سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چھپایا مجھ سے؟ آپ نے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے. یشار سکندر جانتا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. یشار سکندر دھیرے سے مسکراہٹ ساتھ ایک رنگ اسے پہنا دی. آپ نے بہت دیر کر دی, آپ ہمیشہ دیر کرتے ہیں. وہ رنگ اتارتے ہوئے بولی تو یشار نے ایسا کرنے سے روکا. تمہاری شادی کسی تاریخ سے نہیں ہو رہی, بلکہ یشار سکندر سے ہو رہی ہے. ہاں سنان, تمہاری محبت کے آگے میں نے سر جھکا دیا. تم جیت گئی, تمہاری محبت جیت گئی. میں تمہاری محبت میں ہار گیا. میں نے جسے محبت سمجھا تھا وہ محبت نہیں تھی, اور جو محبت تھی اسے میں نے کبھی محبت سمجھا ہی نہیں. پھر ڈوب کے مار جا, تو نہیں سمجھ آتے. سنان ٹکٹکی باندھے سے دیکھتی چلی گئی. ان لمحوں میں ہر شکوہ جو اسے کبھی یشار سکندر سے تھا ختم ہو چکا تھا. جانتی ہو سنان, محبت اپنے ہونے کا یقین چاہتی ہے, اور یہ مجھے اس محبت پر یقین ہو چکا ہے جو تم نے مجھ سے کی اور میں نے تم سے. یشار سکندر کے اقرار نے اسے سچی خوشی دی تھی. وہ پل, وہ لمحہ آج اس کی زندگی میں آ چکا تھا جس کا تصور ہی اس کے لیے بہت خوشکن تھا. اور آج جب اس تصور نے حقیقت کا روپ دھارا تو اسے اپنی خوش بختی کا احساس شدت سے ہوا. اسے اب زندگی کے تمام رنگ یشار سکندر کے سنگ گزارنے تھے. ایسے تو اور پیٹے منہ تیرے تے سنان بی بی, ایڈی بھی تیرے کو نہ ہو سکی, ایڈی بھی تیرے چ غیرت نہیں سی کوئی اپنی عزت کرا لیندی. ابھی ہن قدماں چ بچھی جا رہی تے انہیں تینوں کی عزت دینی ساری زندگی ہے. ساری زندگی دھکے کھائے گی. بڑی پاگل عورت ہے. چلو کیا کر سکتے ہیں, ادھر دی دیویاں نہیں مجھے پسند. ادھر دی دیویاں تے میرا دل کردا میں ویسے گردن دبا کے نا, گلا دبا کے گچی مروڑ دوں پکڑ کے ان دیویوں کی. تو جی تو گائز یہاں پہ ہمارا جو ناول ہے وہ ختم شد ہو گیا, اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. خیر آپ لوگوں کو کیسا لگا ناول, آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تو مجھے تو یہ تھیم پڑھ کے اچھا لگا تھا, لیکن بس اینڈ تے کڑی نے تھوڑی جنی چول مار دی تھی. باقی اوور آل تو اچھا تھا. میں جیسا کہ ناول کے سٹارٹ پہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا, طبیعت کافی زیادہ خراب ہے, صحیح نہیں ہو رہی ہے. ابھی پرسوں 3 انجیکشن لگے ہیں مجھے. تو 3 انجیکشن پرسوں لگوائے ہیں, پھر اس کے بعد میڈیسن 1 ویک ہو گیا کھا رہی ہوں. تو ابھی تو آج شکر ہے پھر پہلے سے بہت بہت زیادہ بہتر ہے. نہیں تو میں تو ڈر کے مارے کر ہی نہیں رہی تھی. میں ساری ساری رات جاگتی رہتی ہوں, کھانستی رہتی ہوں, اٹھ کے آنکھ کھل جاتی ہے. تو ریکارڈنگ کرو, پھر اتنی زیادہ کھانسی, اب بلیو کریں میں نے وہ پیے, سیرپ پیے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا پیا ہے. پھر بیچ میں تھوڑی سی مصروفیت بھی آ گئی, مجھے پہلے آؤٹ آف سٹی جانا پڑا. پھر اس کے بعد ادھر واپس آئے ہیں کچھ دنوں بعد. پھر میری طبیعت واپس آ کے ذرا طبیعت خراب ہوگی, میں نے آ کے انجیکشن وغیرہ لگوائے ہیں. پھر اسی دن ڈیتھ ہو گئی ہمارے ریلیٹیوز میں, ادھر جانا پڑا, 2 دن ادھر لگ گئے, بلکہ آج کا دن بھی مصروفیت میں ہی گزرا ہے. تو بس یہ سارے آ گئے, تو اس لیے نا کمنٹ سیشن ریڈ نہیں ہو پا رہا میرے سے. ابھی میں کمنٹ سیشن کروں گی تو مجھے پتہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے میں نے کمنٹ سیشن نہیں دیا, تو کمنٹ سیشن کی ویڈیو آدھے گھنٹے سے اوپر چلی جانی ہے. تو ابھی تو میں آدھا منٹ ایکسٹرا ریکارڈ کرنے کا ہمت نہیں ہے, کیونکہ ابھی بھی میڈیسن لے کے آئی ہوں, اور ابھی پانی بھی اپنا وہ ہاٹ واٹر کر کے گرم پانی اپنے پاس رکھا ہوا پینے کے لیے. تو ابھی تو ایکسٹرا ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی, اسی لیے میری طرف سے معذرت قبول کریں آپ کہ کمنٹ سیشن نہیں آ رہا. اور باقی لیکن میں آپ لوگوں کے کمنٹ سارے پڑھوں گی. ابھی آج سے میں رپلائی دینا سٹارٹ کرتی ہوں آپ کو انشاءاللہ. جیسے یہ سارے ریپلائیز ہو جائیں گے نا, جیسے میں ساتھ آ جاؤں گی, مطلب آج کا جو ناول ہے اس کے اوپر کل کمنٹس, مطلب جیسے پہلے کمنٹ سیشن ہم لوگ ریڈ کرتے تھے, تو انشاءاللہ ویسے ریڈ کیا کریں گے.
میں جانتی ہوں آپ لوگ اس چیز کو مس کرتے ہیں اور میں خود بہت مس کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ادھر ہی کرتی ہوں، کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگ جاتی ہے۔ لیکن اب سچویشن ہی کچھ اس طرح کی بن گئی اور کچھ نا طبیعت ہی اس طرح کی ہو گئی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ابھی بھی میں نا بڑی اوکھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، ابھی میں اتنی ساری ڈاکٹر نے ٹیبلٹ لکھ کے دے دی ہیں، 2 کھا لی ہیں، باقی ابھی کھانی ہے، تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے موت پڑنی ہے پہلے تو۔ تو خیر آپ مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو ناول کیسا لگا، اور مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔